ओके हेलो। माइक बनता। मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि लाइव क्लास नहीं जा पा रही समहाउ कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। तो लेक्चर ये रिकॉर्ड करके मैं ऐप पे डाल रहा हूँ, ठीक है। पिछली स्लाइड लगा देता हूँ। बचे हुए टॉपिक हैं चैप्टर 4 के, दैट इज़ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल एंड फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। बाकी सारे टॉपिक हो गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड सिलेबस, ठीक है। एसएलआर में बहुत सारे और भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो सेल्फ स्टडी करिए। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम वी हैव टू स्टिक टू आवर सिलेबस सीबीएसई। बाकी कभी बहुत मन करेगा तो मैं सारे टॉपिक्स करा दूंगा, ठीक है। संडे वाली क्लास में मिसलिनियस टॉपिक्स, संडे को मिसलिनियस रखेंगे। लास्ट के जो 3 टॉपिक है, मूविंग कॉयल, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, तो ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे। थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक डेरिवेशन है। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, उस हैंड रिटन नोट्स से आप पढ़िएगा। अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो मैं आधे घंटे लगेगा, ये तीनों टॉपिक समझा दूंगा। आज का जो क्लास है वो मेनली बेसिकली ये दो जो टॉपिक है, टॉर्क और फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, इस पे घूमेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आप टॉपिक शुरू करिए तो अब तक जो भी पढ़ा हमने उसके सारे फॉर्मूले एक जगह लिखिए। इट इज़ अ गुड हैबिट टू राइट ऑल द फार्मूलाज। आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप फॉर्मूला लिखें, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि किसका फॉर्मूला कौन सा है। ये हैबिट डेवलप कर लीजिए, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल द फार्मूला दैट यू लर्न टिल नाउ इन दिस चैप्टर, ओके। द फर्स्ट फार्मूला इज बाय-सावर्ट लॉ, दैट इज dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square, where r square is the distance of point from a current carrying wire which make a theta angle with the current carrying element, okay, where mu naught upon 4 pi is 10 to the power minus 7 and mu naught is 10 to the power minus 7 into 4 pi. This is the first formula that we covered. After that, we covered a formula of current carrying due to straight wire. Current carrying due to straight wire. Only just write formula. आप इतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट को बताता है। 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फिर इसमें हमने स्टैंडर्ड केस बनाया था। थर्ड फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, sorry 2r, mu naught, where r is the radius of circular coil and this is at center, magnetic field at center of coil. This is magnetic field at axial point, at the axis point from the circular coil. One more derivation at the axial point. Fourth is, this is straight wire, and चौथा हमने पढ़ा था magnetic field due to circular coil at the axis, that is mu naught I a square upon twice r square plus a square 3/2 I cap in x direction, ठीक है। आपको ये अगर याद हो, कुछ ऐसा था कॉइल। So here the magnetic field is this one, ठीक। After that we covered Ampere circuital law. Fifth is Ampere circuital law. Ampere's circuital law, which is line integral of B dot dl. Line integral of B dot dl is gives you mu naught and current inside. Ampere circuital law. After that we covered solenoid. So in solenoid, sixth formula in solenoid, magnetic field inside solenoid mu naught n I upon 2 cos
theta 1 minus cos theta 2. Again, some of a student asked, this is not in a syllabus. I agree, this is not in a syllabus, but this is a standard relation for magnetic field due to solenoid or magnetic field inside solenoid. Here, if you change the theta 1 and theta 2, you get a standard result that is given in solenoid 7 in CBSE is mu naught Ni, mu naught Ni. Okay. After that, we learn 8th formula, magnetic field due to toroid inside toroid. 8th formula, magnetic field inside toroid is mu naught capital Ni, where N is number of turn, 2 pi r. After that, force on a charge in a uniform magnetic field is given by q v b sin theta, where q is a charge, v is velocity, b is magnetic field. The direction of force is given by Fleming left hand rule or right hand palm rule. After that, we covered Lorentz force. 10th formula is Lorentz force. Force on a charge due to electric field and magnetic fields is Q times E plus V cross product B, where V is velocity and B is magnetic field, uniform magnetic field. Then after we discuss the motion of charged particle in a uniform magnetic field, where we get a relation of radius, that is mv upon qb, where m is mass of charge, q is velocity, and small q is charge, and b is magnetic field. And time period, 12th formula, time period we get 2 pi m upon qb, 2 pi m upon qb, and 30th frequency we get 1 upon time period, that is qb upon 2 pi m for a complete path, for a circular path. 13, after that, then 14, for the helical motion, for helical motion of charged particle, for helical motion of charged particle, we get radius mv sin theta upon qv, because in helical we take perpendicular velocity, and for pitch, that is 2 consecutive distance is pitch, which is parallel velocity into time period. So parallel velocity is v cos theta and time period is 2 pi m upon qb. Then we covered velocity selector. Okay. After that, we covered 15th formula, that is force on a current carrying wire. Force on a current carrying wire is F is equal to I L into B, where L is the length of conductor, B is a magnetic field, uniform magnetic field, and I is current, where I is Vna, Vd is the drift velocity, E is electron, and number of electron is area. इसका डेरिवेशन हमने आपको कराया था, आई होप इट इज क्लियर. सो अब तक ये 15 फॉर्मूलेज हमने आपको कराए थे. सो प्लीज़ note down this 15 formula in your notebook multiple times, so that you remember all these formulas on your fingertip, and solve as much as possible numerical on this formula. Okay? On each formula I try to discuss at least 2 to 3 questions in a class.
ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हमें लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं. देयर इज 80 क्वेश्चन इन ए ब्लैक बुक and 250 question in SL Aurora, so that is approximately 350 question, and also there is 100 question in my handouts, so that is a 450 question in this chapter. So it is difficult to discuss 450 question in a class because time is limited. तो आप क्या करें, इन 450 क्वेश्चन को करें, डाउट क्वेश्चन वी विल डिस्कस. ओके, एंड आप बड़े क्लास में हो गए तो ट्राई टू फिगर आउट एंड ऑल्सो सॉल्व विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड जो भी है. ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. मैंने जैसा कहा था आपसे, सो आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर एंड टॉर्क. फॉर रेफरेंस आई एम गोइंग टू ओपन SL Aurora so that you have some idea कि हम कहाँ से टॉपिक को कवर करें. So topic number in SL Aurora 4.18. In NCERT it is, where is my NCERT bro? Okay, so in NCERT simultaneously we are covering NCERT line by line so that आपका NCERT ना छूटे, फिर ये ना हो कि आप NCERT के लिए अलग से टाइम निकालें. So topic is (4.8) from NCERT. So from NCERT this is 4.8, and this is 4.9 from NCERT. Okay, so there is one topic also, that is dipole. We will discuss the dipole also, no problem, today only. Then galvanometer is topic 4.10. Oh, so there is only galvanometer, I hope, no ammeter. Oh. So in 4.10 ammeter and galvanometer is covered. Okay, so let's discuss some concepts. So topic is चलिए ये फ्रेम ही सही रहेगा, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ आधा इसको कट कर दूँ, है ना, इतना ठीक रहेगा. तो ये ऑफलाइन के बच्चों के लिए रहेगा, बाकी आपके पास बुक है तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं. सो टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, बिटवीन टू पैरेलल current carrying conductor. एम्पेयर ने एक एक्सपेरिमेंट किया. एम्पेयर डिड अ एक्सपेरिमेंट. लेट मी शो यू डायग्राम. सो एम्पेयर डिड अ वन एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने दो वायर लिया और एक बार उन दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम रखा और एक बार अपोजिट रखा. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ वायर इज सेम, it is found that both wire
attract each other. Ampere perform an experiment. मैं इसको यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ. सो जिनको लेक्चर स्लो लगेगा आज का, क्योंकि आज मेरी बीपी लो है, सो वो 2.0 में इस लेक्चर को देखेंगे. ठीक है, यू हैव अ ऑप्शन कि आप स्पीड बढ़ा सके. ओके, यू टेक दिस टेक्नोलॉजी एज अ यूटिलिटी. ओके, मैं धीरे ही पढ़ाऊँगा आज. सो एम्पेयर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें इन्होंने 2 वायर लिया पैरेलली, जिसको एक डी डिस्टेंस पे रखा सेपरेशन, और यहाँ पे आई करंट प्रोड्यूस किया. दोनों I1 I2 की वैल्यू सेम है और डायरेक्शंस भी सेम था. ही फाउंड दैट बोथ वायर अट्रैक्ट ईच अदर. दिस कंक्लूजन फ्रॉम experiment. He take another wire, same setup, but somehow he opposite the flow of current. He found that both wire repel each other. From this experiment, he conclude that there is a force between 2 wire when there is a current is flowing, because when current is flowing in a wire, it produces magnetic field, and because of magnetic field, force is exerted on each other. This experiment was conducted in 1820. तो आप देख रहे हो 1820 की एक्सपेरिमेंट को हम लोग 2024 में पढ़ रहे हैं. तो बहुत पुरानी बात है. ठीक है, और आज तक इसको कोई गलत साबित नहीं किया. ये फोर्स कितना होता है, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे. डेरिवेशन है हमारा. सो फोर्स इज F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi r, where r is the distance between 2 wire. Let's say this is r, not d. R, distance between 2 wire, and length of any one conductor. So our concern is to derive this expression. Okay, so let's do it. So next topic is expression for the force between 2 parallel current carrying wire. Expression for the force between 2 parallel current carrying wire or conductor. Current carrying wire and conductor. Let's say this is first wire and this is second wire, separated by a distance r. This is infinite wire, कोई भी लेंथ का. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है. सेपरेशन बिटवीन दिस टू वायर इज r. Let's say this is wire A and B, this is wire C and D. So according to right hand thumb rule, if we take thumb in the direction of current and close our finger, it will be showing that magnetic field is producing like this direction, that is anti-clockwise direction. So let's say due to wire 1 and due to wire 1, the magnetic field produced at wire 2 is B1, and the force acting on wire 2 due to wire 1 is F2.
Okay, let's say this is current I1 and this is current I2. In first case, this is current in same direction. Okay, in same direction. So let's say this is direction of magnetic field due to wire 1, and magnetic field is tangential at this point, that is B1, and force acting 90 degree F2. So according to right hand palm rule, magnetic field is going inside, current is above upward, that is from A to B, and force is acting toward the AB. So F2 is force on wire 2 due to 1. Okay. So force acting, F2 is a force acting on wire 2. How much? This is F2 is equal to I LB sin theta. Here theta is 90 degree. Theta is 90 degree. And current is I1, magnetic field B1, and theta is 90 degree because it's a perpendicular. So this is I1 L B1. अगर हम B1 की बात करें, B1 कितना होगा? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर इज ऑलरेडी, अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले लिख दिए थे. आई होप समवेयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर इज एट्थ वाला फॉर्मूला आप देखिए, म्यू नॉट एन आई 2 पाई आर. इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें यहाँ पे, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर B1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट I1 एट डिस्टेंस R, एट डिस्टेंस R. So when we substitute this value B1 in F2, put value of B1 in F2, we will get F2 is equal to I1 L B1 is mu naught upon 2 pi I1 R, where L is length of wire. Okay. When we simplify this little bit, we get, when we simplify we get, हाँ सर आ जाओ तुम्हारा इंतजार था, बैठो. When we simplify this we get, मैथ्स की क्लास चल रही है उसकी, F2 is equal to I2, ओके बैठो क्या बात करते हैं इसके बाद, क्लास के बाद टाइम के बारे में. एक सेकंड, क्या डेरिवेशन कर रहा था मैं? हाँ, I2 कहाँ लिखा मैंने? ओके दिस वन, ओके सॉरी, दिस इज I2. अब ठीक है, मैंने कहा सेम, क्योंकि फॉर्मूले में आपका I1 I2 आएगा. ध्यान से देखिए, F2 क्या है? F2 इज अ फोर्स, ओके सो B1 is magnetic field due to current I1 at distance R. B1
is magnetic field, B1 is magnetic field due to current I1 of wire 1 at distance r। ठीक है, कितनी वैल्यू है इसकी, मैं फिर से लिख देता हूँ। B1 है आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन r। एंड फोर्स acting on wire 2 F2 due to 1 is F2 is force acting on wire 2 due to wire 1 is current 2, length of wire L and magnetic field B1। अब तुम देख लेना थोड़ा पहले से, अभी समझ आ जाएगा तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं। अगर हम वैल्यू पुट करें B1 की यहाँ पर, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू B1, वी गेट F2 is equal to I2 I, this is L not I, L length of wire, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। तो ये नोट्स में ना अपडेट करना पड़ेगा, मैंने ना ये I और L एक जैसे ही लिख दिया है, ये L है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करें तो हम लोग लिखेंगे इसको म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये है आपका फोर्स जो कि दो वायर के बीच में लग रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, इक्वल लगेगा और अट्रैक्ट करेगा। कितना लगेगा, वो इतना लगेगा। इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। ऐसा पहली बार किसने बताया, 1820 में एम्पेयर ने, ये क्या नाम है जो भी है बंदा, उसने एक्सपेरिमेंट किया था, एम्पेयर ने। उसका डेरिवेशन है ये। इसको थोड़ा सा हम ये रहा पूरा डेरिवेशन। देखो टॉपिक क्या है, मैं पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो ये है आज का टॉपिक। दो टॉपिक मुझे कवर करना है आज, 4.8 4.9 फ्रॉम एनसीईआरटी। एक तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग वायर और दूसरा फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। और ये तीन टॉपिक है, कहने को तीन है एनसीईआरटी में की टॉपिक 4.10। ये सेल्फ स्टडी में पढ़ना है, इसके नोट्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद भी नहीं समझ आएगा तो मिसलेनियस में करा दूँगा। पहला टॉपिक मैंने शुरू किया था, मैंने ये बताया कि अगर ऐसा एक सेटअप एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें जब सेम डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस किया गया तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड भी बना क्योंकि करंट जा रहा है, तो ये दोनों वायर चिपक रहे थे, पास आ रहे थे। दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में करंट को अपोजिट डायरेक्शन रखा गया, एक में ऊपर एक में नीचे, तो ये वायर दूर भाग रहे थे। तो चिपक और दूर भाग रहे हैं बिकॉज इनके बीच में फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, और वो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, अभी तक चार्ज पढ़ा था हमने, अब वायर पढ़ रहे हैं। तो ये कितना लग रहा है इसके लिए डेरिवेशन करना था, मतलब है तो ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यही आंसर है आपका। बट ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन करना था हमें, तो इसका डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग। फिर से फॉर्मूला समझ लो कैसे है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, दोनों वायर का करंट I1 I2 और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है R, और एक वायर की लेंथ L, दोनों सेम ही होंगी। मतलब ऐसे तो इनफाइनाइट वायर है तो L लेंथ हमने काट लिया। याद करने का तरीका बहुत सही है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको याद करने का तरीका क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, दोनों में जो करंट है I1 I2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है और उसकी लेंथ की वायर किसी एक की। डेरिवेशन कैसे किया हमने एक वायर लिया, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एट पॉइंट, कुछ पॉइंट मांग लो यहाँ पे CD पे लेट से पॉइंट P।
तो वो कितनी होती है, किसी वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये कहाँ से आया, ये आया हमारे पास एक फॉर्मूला, हमने यहाँ पे लिस्ट लिखा है। टोटल अब तक हमने 15 फॉर्मूले पढ़े हैं, अब तक हमने 15 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, जिसमें से ये आठवां फॉर्मूला है हमारा। ये रोज़ लिखना है आपको, फॉर्मूले की हैबिट डेवलप करनी है। ये आठवां फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया एक वायर की वजह से, ध्यान दें यहाँ पे। तो फोर्स हो गया आपका, कितना हो गया फोर्स, हमने फोर्स के लिए भी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, वो होता था आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में कि फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर इसमें करंट जा रहा है कितना, इस वायर में I2 करंट जा रहा है, कितना जा रहा है I2 करंट। तो आपका हो जाएगा I2 लेंथ ऑफ वायर B1 साइन 90, क्योंकि 90 डिग्री पे होंगे ये। 90 डिग्री पे क्यों होंगे, कि वो ये लगाएंगे ऐसे डायरेक्शन, ठीक है, करंट डायरेक्शन, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन जा रही है, इसके वजह से तो इस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड AB। ये सारा कुछ डेरिवेशन किया मैंने, तो हमें F2 मिल गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ वायर। अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूंगा, फिर से लिखते हैं इसको, अगला टॉपिक है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसी में ये छोटा सा, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल f इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ वायर, फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ वायर। तो फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अभी याद कराया मैंने, I1 I2 अपॉन केवल R स्क्वायर, और ये L से L कट गया, तो स्मॉल f कितना आया, यह आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये स्मॉल f है, क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसी में लिखेंगे एक लाइन, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग according to Fleming left hand rule, this force act at a right angle to CD towards AB in the plane of the paper, अब समझने वाली क्या बात है, अगर मैं इसको डायग्राम को कट करके लगाऊं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, बार बार बनाने से बेटर इसको कट कर लेते हैं, जब टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो पहला डायग्राम है फर्स्ट, इसमें करंट का डायरेक्शन सेम है, क्या है, सेम है, दोनों करंट का डायरेक्शन सेम। यहाँ पर फोर्स F2 हमने निकाला, अभी F2 निकाला हमने म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1, अब तो याद हो गया, I2 अपॉन R इंटू L। सिमिलरली उतना ही F1 भी आएगा, क्या आएगा, दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम आएगी। आप देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक तरफ जा रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो वेक्टर के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बराबर तो होगा F1 के, बट किससे, माइनस किसमें, देखो ना, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है और एक का इधर है, ठीक है ना। सेकंड डायग्राम में सेम लॉजिक, सेम इसका डेरिवेशन, सेम फॉर्मूला, सब सेम है, सब डेरिवेशन वैल्यू सेम आएगी, बस डायरेक्शन का खेल क्या है कि इसमें F1 का डायरेक्शन अवे फ्रॉम जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, उल्टा हो रहा है इसमें, एक में करंट ऊपर जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एक में करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लॉकवाइज है।
अब एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज से राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड एक बार आपको इनसाइड प्लेन मिलेगा, एक आउटसाइड प्लेन मिलेगा। आप देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 ये इनसाइड प्लेन मिलेगा, ठीक है, और B2 मिलेगा आपको आउटसाइड प्लेन, नीचे जा रहा है ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है B2, ऊपर जा रहा है अंदर की तरफ घुस रहा है ये B1। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू इसमें भी सेम आएगा फोर्स का, बट इसमें रिपल्सिव फोर्स होंगे, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, ठीक है। तो इतना ही डेरिवेशन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, अगर आप ध्यान से एक ये वाला लाइन पढ़ोगे, ये भी ऐड कर देता हूँ मैं। अब एसएलआर में जितनी बातें पढ़नी है वो मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ, सारी बातें पढ़नी भी नहीं है। ये वाला पैराग्राफ डायग्राम यहाँ से देख लेना, ये है डायग्राम, ये 4.81 का डायग्राम। तो यहाँ से अगर अब देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, हैज सोन इन फिगर 4.8b, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, उधर लगा हुआ। व्हेन करंट इन द टू पैरेलल वायर फ्लो इन अ अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल, द फोर्स बिटवीन टू वायर इज रिपल्सिव, पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपल, एक लाइन लिखी हुई। अब ये जो तुमने फोर्स पर यूनिट लेंथ की एक वैल्यू निकाली, स्मॉल एफ की निकाली है ना, स्मॉल एफ का फॉर्मूला क्या बनाया आपने, स्मॉल एफ का फॉर्मूला बनाया है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, एल बस गायब हो जाता है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो रहेगा ही, I1 I2 भी रहेगा और R भी रहेगा, क्या गायब होगा, एल, क्योंकि एल डिवाइड कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ से एम्पेयर का डिफिनेशन बनाते हैं कि अगर हम मान लेते हैं इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर है, क्या है 1 एम्पेयर, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 मीटर, क्या 1 मीटर। इफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वायर इज 1 मीटर, इन दैट केस F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्या आएगा, तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्या है इसका मतलब कि अगर आप किसी वायर में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करते हो, किसी दो वायर हैं इनमें अगर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करते हो, इसमें भी 1 एम्पेयर इसमें भी 1 एम्पेयर, तो इसमें जो लगने वाला फोर्स है F, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 इंटू 10⁻⁷, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू है। 1 एम्पेयर करंट बहुत ज़्यादा है लेकिन फोर्स बहुत कम लग रहा है, इसीलिए दो वायर आपस में कभी चिपकते नहीं हैं, चाहे आप दो वायर ऐसे रख दो छील के भी ऐसे, और उसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो कराओगे तो भी ये नहीं चिपके, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत कम है। अच्छा एक चीज़ मैं सोच रहा था डिस्कस करूँ, मैं कर ही रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग पेपर देखा कि नहीं, एक पेपर मैंने आपको शेयर किया है 35 मार्क का जो हुआ है UT चैतन्य का, अगर उसको देखोगे ध्यान से पेपर, तो जैसा कि CBSE का गाइडलाइन आया है, CBSE गाइडलाइन क्या है कि CBSE की गाइडलाइन में ये है कि जो तुम लोग हाई तो अब पढ़ते थे और बहुत सारे टीचर पढ़ा भी रहे हैं ओल्ड पैटर्न पे, न्यूमेरिकल आप देखो ध्यान से केवल एक आया है, आप उसके MCQ देखना तमीज़ से, MCQ भी जैसे आए हैं एप्लीकेशन बेस आए हैं, क्या है क्वेश्चन भी एप्लीकेशन बेस आए हैं, तो उसको आप पेपर को तमीज़ से देखना। अब तक 2 स्कूल के पेपर हो गए, हो तो गए कई सारे स्कूल के, लेकिन 2 के, जैसे एक तो हार्दिक का पेपर भेजा है, एक चैतन्य का भेजा मैंने, इन दोनों पेपर को अच्छे से देखना। ये दोनों पेपर 35 मार्क के हिसाब से 1.5 घंटे का, इन्होंने जो क्वेश्चंस बनाया है एसएसएन रीजनिंग और MCQ बनाया है, वो ये बनाया कि तुमको चैप्टर की समझ है कि नहीं, केवल फार्मूला डेरिवेशन से नहीं होगा काम, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर नहीं आ रहा है। तो जो एक पुराना पैडागॉजी था ना कि खूब न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल आ ही नहीं रहा है, और बताओ तो क्या करोगे, डेरिवेशंस आ रहे हैं, डेरिवेशन पे कैसे आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं डेरिवेशन के फॉर्म में, एप्लीकेशन है कोई, है ना, मान लो तुम्हें सर्कुलर रिंग पढ़ के गए, हाफ रिंग क्वार्टर रिंग पे क्वेश्चन आ रहा है, तो कैसे करोगे, थोड़ा अलग तरीके से फिजिक्स अब सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आपका, ये टॉपिक डन हो गया, क्या नाम था, वह कहाँ चला गया, ये फॉर्मूले थे, फोर 4.8 टॉपिक फ्रॉम NCERT डन, ठीक है। अब हमारा टॉर्क है लास्ट टॉपिक, फिर से कह रहा हूँ ये तीनों टॉपिक सेल्फ स्टडी है, नहीं भी आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, बट फिलहाल क्योंकि कोर्स ऑफ टाइम ऑलरेडी खींच रहा हूँ मैं इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि मेरे को सेमीकंडक्टर चालू करना है, ऑलरेडी पीछे चल रहा हूँ,
चिकित्सा का अगला टॉपिक सेमीकंडक्टर ही है, ठीक है। तो तुम्हारे सिलेबस में ये 4 चैप्टर आ रहा है तो ये खत्म हो जाएगा। बाकी मैं इसका हैंड रिटन तीनों का ही आज ही रात को हैंड रिटन में आपको पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो कल सुबह तक, ठीक है। बहुत छोटा सा ये टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ऐसा हो रहा से टॉपिक का नंबर है 4.19। तो डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट क्यों करूँ, जस्ट कट पेन पेस्ट करूँगा डायग्राम। 4.19 19वां टॉपिक है, ऐसा लग रहा है। टॉपिक का नाम है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क experienced by a current loop in a uniform magnetic field। एक ऐसा हमने 10th में भी पढ़ा है, बट 10th में जो पढ़ा था वो फोर्स के लिए पढ़ा था। इसमें टॉर्क है, टॉर्क भी होता क्या, फोर्स ही तो होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना टॉर्क, टॉर्क यही होता है। तो हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप को बनाना है और आना चाहिए ये डायग्राम, ये है, समझिएगा क्या है ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और PQRS एक रिंग है कंडक्टर का जो मैंने इसमें बना के रख दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट हम इसको दे रहे हैं, समाव कहीं से दे रहा हूँ कुछ, करंट का डायरेक्शन है ऐसे ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, फोर्स किधर लगेगा, अंदर, इस वाले। QR और PS वाले जो आर्म है इसमें फोर्स नहीं लगेगा, इसमें फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा, किसके बीच में, आपके एक तो उसके आपके मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, तो साइन 0 हो जाएगा। फोर्स लगेगा इन दोनों में, केवल आर्म PQ एंड आर्म RS। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, फोर्स बाहर की तरफ, फोर्स तो एक तरफ फोर्स अंदर की तरफ और एक फोर्स बाहर की तरफ। तो जो आपका ये कॉयल रखा हुआ है, मेरी ब्लैक बुक का प्रमोशन हो जाएगा ना, ये जो कॉयल रखा हुआ है इस वाले हिस्से में फोर्स इधर, इस तरफ इधर, तो ये नाच जाएगी, और ये जो नाची है फोर्स जो लगा है इसी को हम टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो फिर से एक छोटा सा डायग्राम यूज़ करते हैं नेक्स्ट समझाने के लिए, ये छोटा वाला। तो जो हमारा कॉयल है उसका टॉप व्यू लेंगे हम, तो हमें कॉयल जो है वो एक डायपोल की तरह दिखेगा, डायपोल भी नहीं कहेंगे, एक वायर की तरह दिखेगा, कुछ ऐसा ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो एक वाले हिस्से में फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, एक में बाहर की तरफ लग रहा था, तो ऐसे घूमेगा जो था, करंट अप करंट डाउन, करंट अप एंड करंट डाउन। ये जो हिस्सा तुम देख रहे हो फोर्स, ये जो देख रहे हो करंट ऊपर जा रहा है, ये जो हिस्सा देख रहे हो ये वाला है PQ वाला है, क्या है, ये जो देख रहे हो नीचे जो आ रहा है ये RS वाला है। हमने केवल उसका एक ट्रांजैक्शन व्यू बनाया है, क्रॉस सेक्शन, ताकि आप इसको समझ सकें। नहीं उसके में नहीं आ रहा है, ये तो बात है, समझ भी नहीं आएगा बीच में से ना। अब हम इसका टॉर्क का डेरिवेशन बनाएंगे, जो कि हमें फॉर्मूला लिखना है टॉर्क का। टॉर्क का डेरिवेशन बनेगा, दो फॉर्मूले हैं, एक है आपका NIBA sin थीटा,
वेयर आई इज करंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एन इज नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल एंड ए इज एरिया। ए इज दूसरा फॉर्मूला है आपका, तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा डेरिवेशन करेंगे टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं स्मॉल एम को, क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट इनटू बी। और स्मॉल एम होता क्या था डाइपोल मूवमेंट, ये होता है आपका एन आई ए, एन आई ए। ये दो डेरिवेशन करने हैं हमें, ठीक है, करते हैं सर, क्या दिक्कत है। अरे भेज दिया मैंने, ये ग्रुप पे भेजा, आराम से देख लो, ये सब लिखा हुआ है, ग्रुप पे डाल दिया मैंने अपनी क्लास में। ठीक, करते हैं डेरिवेशन। लेट अज्यूम करते हैं कि आई करंट जो है वो आपके कॉइल में, मैं यहाँ पे केवल कॉइल बना देता हूँ, पी क्यू आर एस। आई करंट है, इसका ये वाला ए लेंथ का है और ये वाला बी लेंथ का है, तो एरिया होगा ए बी, कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ ए बी। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बी, फोर्स लगेगा 9 है ना, ये नॉर्मल डायरेक्शन एन, इसके बीच में थीटा है। ठीक, अब समझते हैं, ए कॉमा बी इसकी साइड्स हैं कॉइल की, तो एरिया हो जाएगा आपका ए बी, कितना हो जाएगा ए। और थीटा क्या है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल, एक नॉर्मल लाइन बनाई जाएगी ना जिसके ऊपर ये घूमेगा, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल। एक लाइन, इमेजिनरी लाइन होगी जिसके इर्द गिर्द ये घूमेगा, जैसे ये कॉइल है, काल्पनिक लाइन सोच लो, ऐसे घूम रहा है, ये नॉर्मल लाइन है ये वाली, जिस पे ये घूम रहा है, जिस पे ये घूम रहा है, तो एक नॉर्मल लाइन है, उससे एंगल बन रही है किसकी, बी की। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं कि फोर्स कितना फील होगा पी क्यू पे ड्यू टू आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी जो वैल्यू होगी 90 डिग्री होगा, तो ये होगी आई एल बी साइन 90, आई एल बी साइन 90। ये फोर्स है ऑन आर्म पी क्यू वाले पार्ट पे। ठीक है, इतना ही होगा, ड्यू टू वायर हमने पढ़ा है, तो ये आई एल बी होगा, तो यहाँ से साइन 91 होता है, तो हो जाएगा आई एल बी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ योर पी क्यू वायर, जो कि इस केस में बी क्या है, बी है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगा वैल्यू, तो हो जाएगा आई बी, स्मॉल बी इज द लेंथ ऑफ पी क्यू लेंथ। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू, इसलिए ये वाला डायग्राम यूज किया गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा कैसे, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे फोर्स लग रहा है ना, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, जो कि है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, क्योंकि ये लेंथ है ए, देखो ये वाली लेंथ क्या है ए, ये आपका वायर है, उससे थीटा एंगल बना, तो क्या बना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बना वो बना ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इस ट्राइंगल से। तो यहाँ पर जब टॉर्क लिखेंगे हम, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स है आई बी कैपिटल बी, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, वेयर ए क्या है, ब्रेथ ऑफ कॉइल, ब्रेथ ऑफ चौड़ाई कॉइल की। ए इंटू बी होता है एरिया, क्या होता है एरिया, तो आई एरिया मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, यही होगा ना टॉर्क। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न है, फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न, तो टाउ हो जाएगा कैपिटल N आई ए बी साइन थीटा। बोलो हाँ है ना, ये बहुत इजी डेरिवेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने इसे टफ डेरिवेशन किया है। ये जो वैल्यू होती है एन आई ए, ये होती है डाइपोल, डाइपोल नहीं बोलेंगे, मैग्नेट मूवमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्योंकि आपका क्या एरिया, करंट और नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से वो घूम रहा है, तो वो मैग्नेट मूवमेंट, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे,
तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आपका आ जाएगा, टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा आपका स्मॉल m b साइन, तो एंगल नहीं पता ना। अब इन साइन थीटा यानी कि दोनों आपस में कैसे है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। सो m क्रॉस प्रोडक्ट b, ये आपका टॉर्क का दूसरा डेरिवेशन आ गया। ठीक है, ये आपका दूसरा डेरिवेशन। ठीक है, इसमें दो स्पेशल केस बनते हैं। एक आपका थीटा 0 डिग्री अगर हो, आओ बैठो, थीटा क्या हो, स्पेशल केस हो गया। मैथ्स क्लास क्या पढ़ा आपने, पहला एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज। थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, क्या हो, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये एम बी साइन 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये टाउ साइन 0 क्या होता है, 0 ना, साइन 0 क्या होता है, मेरी है, साइन 0 0 होती है। यानी कि इस केस में टाउ आपका मिनिमम होगा, टाउ इज मिनिमम, टाउ इज मिनिमम। आपने मैथ का होमवर्क कर लिया, आपको करना है। व्हेन प्लेस लूप परपेंडिकुलर टू, व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ये है प्लेन जिसके इर्द गिर्द ये घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है नॉर्थ पोल से, तो ये परपेंडिकुलर नहीं हुए, ऐसे घूमेगी ये प्लेन के इर्द गिर्द। तो व्हेन प्लेन ऑफ लूप, व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field। केस नंबर 1 था ये। 2, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर प्लेन ऐसे हो जाए घूमने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होने वाली है, ये घूमेगा, ये मेरी कॉइल था, ये घूमा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, मतलब अब क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू अगर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करें, चाहे एम बी साइन थीटा या पहले वाले में, तो टॉर्क हो जाएगा आपका एन आई बी ए, यहाँ भी पुट कर सकते थे एन आई बी ए साइन 0। ये मैक्सिमम टॉर्क है, क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि साइन 91 होता है, क्या होता है, यानी टॉर्क अगर मैक्सिमम करना होगा तो थीटा कितना करना पड़ेगा, 90 डिग्री। क्या लिखा हुआ है इसमें, दैट इज therefore लिखना, therefore द टॉर्क, ये सब लिखा हुआ है, मैंने आज ही अपलोड किया ना, 13-12 पेज का ग्रुप पे डाल दिया मैंने ये। टॉर्क इज मैक्सिमम when the plane of loop is parallel, when plane of loop is parallel to the magnetic field, to the magnetic field। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी लिख के ग्रुप पे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, इसीलिए तो मैं खींच रहा हूँ इसको, कोई नहीं, ये वाला टॉपिक तो करो, सही में छोटा सा टॉपिक है ना, हो जाएगा, वो भी छोटा टॉपिक है, थ्योरी है वो, इससे कम टॉपिक उसमें मैंने अपलोड किया, वो बहुत ज़्यादा थ्योरी, उसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं। सर जी देखिए, देख लीजिए सर, ये लिस्ट थी आज की क्लास की, ठीक है। अब दिनांक क्या है, 18 जुलाई, ये पहले ख़त्म हो गया था बट टाइम समय लगा। ये 3 नहीं है, एक ही टॉपिक है एनसीईआरटी में 4.10। ये 3 डिवाइसेस है, एक है गैल्वेनोमीटर, एक है एम मीटर और एक है वोल्ट मीटर। आपको मोटा मोटा काम पता है क्या करता है, ये वीक करंट नापता है, ये स्ट्रॉन्ग करंट नापता है और ये वोल्टेज नापता है। पूरी थ्योरी है इसमें, कैसे काम करता है, इसका एक नोट्स दूंगा मैं जिसमें सारा लिखा होगा।
आपको बस उसको सेल्फ स्टडी करना है। जैसे ये रहा गैल्वेनोमीटर, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। हाँ सिलेबस में एनसीईआरटी में ओपन कर लेना, कैसे हम ये कन्वर्ट करते हैं, ये रहा, है ना। तो ये आपका थ्योरी की जो चीज़ है वो हो गई ख़त्म। 5 मिनट और दो, मैं न्यूमेरिकल पता ये चलना चाहिए किसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है, ये किसका है, सभी तो मैग्नेटिक फील्ड, ये बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बॉय थोड़ी ना होता। सेकंड फॉर्मूला किसका है, सेकंड फॉर्मूला किसका है, दुआओं में याद रखना, असाइनमेंट होगा सारा। क्यों, हाँ, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये स्ट्रेट करंट वायर है और ये आपका ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर रखा है, इसके वजह से ये आपका φ1 हो गया, ये φ2, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड। किस चैप्टर का था वैसे, अभी मिलता है पेपर, अभी क्या पढ़ने आए हो, बैठो यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करो, यहीं बैठो, कहाँ जाओगे, क्लासेस ऐसे ही लिमिटेड है हमारे पास, है ना। तीसरा फॉर्मूला किस चीज़ का है, कहाँ पे है, एट सर्किल। फोर्थ फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला देख के पता होना चाहिए किसका है, सर्कुलर रिंग का है, एक्सिस पे है, सर्कुलर रिंग ही है बट एक्सिस पे है, एक्सियल वाला। फॉर्मूला पांचवा क्या है, एम्पेयर, क्या, छठवां फॉर्मूला किसका है, कराया तुम लोग को, ये किसका है, ये नहीं कराया, ये सोलेनॉइड का ही है, इनसाइड द पॉइंट का है, ये लेकिन कराया है सोलेनॉइड का, तुम्हारी कॉपी में लिखा है सोलेनॉइड, रिवीजन नहीं करोगे तो भूलोगे, ऐसा लग रहा है मेरा 12th है, मैं रोज रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक, फॉर्मूला नंबर 8, ये किसका है, हाँ भाई मेरे को नहीं पता, स्ट्रेट वायर का ही है ना, बाई, हाँ उसके थ्रू है, क्या कहते हैं, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, एम्पेयर सर्कुलर लॉ। उसके बाद 9th किसका है,
फोर्स का है, किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। फिफ्थ 10th फॉर्मूला किसका है? लॉरेंस फोर्स। 11th फॉर्मूला किसका है? सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, रोज़ फिजिक्स पढ़ रहे हो 12 दिन, रोज़ अपने नोट्स में पहले पेज पे फॉर्मूला लिखो। शुरू करवा दिया मैंने हर जगह, मैं आके लिख रहा हूँ। आर है आपका, जब वो चार्ज सर्कुलर पाथ फॉलो करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो तो ज़ीरो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज जाएगा तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, उसका रेडियस होगा आर, उसका है ये, वो है टाइम पीरियड। एफ है फ्रीक्वेंसी। हेलिकल, इसके दो वेलोसिटी होगी, परपेंडिकुलर और पैरेलल। रेडियस आता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी से। एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी दूंगा। हेलिकल पाथ कब आता है? जब वेलोसिटी को हम एक थीटा एंगल से फेंकते हैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, एक इस तरफ होता है वी परपेंडिकुलर, जो होता है वी कॉस, वी पैरेलल, वी कॉस थीटा। एक होता है वी परपेंडिकुलर, क्या होता है? परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा। ये जो ऊपर गया है ना, ऐसे रिंग 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 बना है, ऊपर जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। आगे जाता है, यानी जो चार्ज है एक ही बार दो चीज़ हो रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार आगे जा रहा है, तो ये रिंग बन गई। इसको हेलिक्स बोलते हैं, हेलिकल पाथ क्या बोलते हैं? तो ऊपर जो जा रहा है वो परपेंडिकुलर वैसे आ रहा है, तो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है? वी साइन मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ। मैंने दो नोट्स भेजे हैं आपके ग्रुप पे मेरे हाथ से लिखे हुए, 35 पेज का और 13 पेज का, ये सब उसमें लिखा हुआ है। आप लोग को क्या करना है, सारे नोट्स को देख के अपडेट करना है। टॉर्क है, करा दिया, आज ही कराया, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये 14 फॉर्मूला हो गया। उसके बाद टोटल 14 और ये 15 है ना, 15 फॉर्मूला हो गया। आज की क्लास में भी 2-3 फॉर्मूला है। आज की क्लास का अच्छा, ये एक फॉर्मूला ये था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, 15 फॉर्मूला ILB, वायर में लगने वाला फोर्स। कूलम चार्ज है, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद शुरू हुआ टॉपिक, कूलम्स पूछा है वो हमसे। हाँ, एवोगैड्रो मोल का कॉन्सेप्ट है। क्या हो गया? केमिस्ट्री। आज भी हम लोग 3-4 फॉर्मूले पढ़े, तो लगभग 20 फॉर्मूले हो रहे हैं इस चैप्टर से। इनको लिखो, इन पे करो न्यूमेरिकल, है ना। हिम्मत आज हो नहीं रही, बीपी है लो मेरा, न्यूमेरिकल आज कराने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो संडे को मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेस्ट तो आज ही है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तुम दोनों का ही है। कहाँ बैठा है? कैपेसिटर का टेस्ट इनको कुछ आ ही नहीं रहा था। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। तुमने रिकॉर्डिंग देखी? रिकॉर्डिंग देखी? कैपेसिटर वाली? तो फिर बोला था ना मैंने, अब तुमको टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ से बंद करो, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ।